So this is SK20 Volume 2 मेडिसिन का पेपर नंबर 4 है. A patient presents with needle pin like sensation which starts from jaw and move upwards. इसका cause क्या है? The cause is your trigeminal neuralgia. A patient presents with weakness in lower limb after 3 days. He started having breathing problem. What should be treatment option? तो treatment option क्या होगा? That will be IVIG. Calculate the GFR when hydrostatic pressure is 60. Bowman capsule hydrostatic pressure is 18. Capillary oncotic pressure is 28. तो 60 minus 18 plus 28, ठीक है. तो 18 और 28 को आप ऐड करो, उसको आप 60 से माइनस करो, दिस विल बी 14. A person was bitten by a dog. There is deep wound after initial management. What should be given? तो डॉग बाइट में आपने क्या देना है? रेबीज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन भी साथ में देना है, ठीक है. ऑप्शन डी. फिर है कैलकुलेट एनाइन गैप व्हेन द फॉलोइंग वैल्यूज. सोडियम 144 है, पोटेशियम 4.5 है, क्लोराइड 107 है, HCl 315 है. तो 144 माइनस 4.5 माइनस 107, इससे आपके साथ 22 वैल्यू आएगी. इस तरह आप एनाइन गैप को कैलकुलेट करते हो. A child presents with diarrhea, abdominal pain and bloating. She saw that it improves with gluten-free diet. How will you confirm the diagnosis? Celiac disease है, तो इसमें हम IgA tissue transglutaminase antibody करेंगे. Patient diagnosed with ventricular fibrillation. How will you manage the patient if he is hemodynamically unstable? तो unstable अगर होगा तो उसमें हम कार्डियोवर्जन करते हैं या डिफिब्रिलेशन करते हैं. ये आपके साथ है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन में आप कार्डियोवर्जन करते हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हीमोडायनेमिकली अगर अनस्टेबल हो तो डिफिब्रिलेशन आप करो. Lacrimal gland receives parasympathetic from pterygopalatine ganglion that receive preganglionic fibers from. तो वो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर रिसीव करता है फ्रॉम द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व. फिर इसके बाद है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. कौन से हैं अमंग द फॉलोइंग? तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड आर कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. 5-year-old male child presents with increased bleeding after cut. Bleeding time more than 20 minutes and factor 8 deficiency while APTT and PT normal. तो इसका मोस्ट लाइकली सूटेबल डायग्नोसिस अमंग्स द फॉलोइंग क्या होगा? ब्लीडिंग उसकी इंक्रीज़ है, बीटी ज़्यादा है, वॉन विली ब्रांड की तरफ जा रहा है. अ चाइल्ड डेवलप नाइट ब्लाइंडनेस. व्हाट इज़ द लाइकली डिफिशिएंसी? विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, रेटिनॉल की. A person takes part in trial and has to take sodium daily but his serum sodium level remains 139. What maintains its concentration to normal? तो इसका concentration normal में रखेगा, that will be your ADH. Patient presents with ulcer pain. His gastrin is 8 times increased gastrinoma है. How will you confirm the diagnosis? तो उसमें हम secretin देखते हैं. Secretin value हम देखेंगे. A female presents with fever with chills for the past few days. Her unconjugated bilirubin is raised but ALP is normal. She is passing cola color urine. तो इसका डायग्नोस क्या हो गया? फीवर, चिल्स है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है और ALP नॉर्मल है. दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. A child presents with sore throat fever for last 2 to 3 days. He is passing cola color urine. तो इसका डायग्नोस क्या हुआ? दैट इज़ योर गुड पास्चर, दैट इज़ योर IgA नेफ्रोपैथी. अगर 2 to 3 डेज के बाद हेमाचूरिया हुई, IgA नेफ्रोपैथी है. अगर 2 to 3 वीक्स बाद हेमाचूरिया हुई तो PSGN सस्पेक्ट करना है. इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लूवी. तो एंगल ऑफ लूवी में आपको अमंग्स द फॉलोइंग क्या मिलेगा? जॉइनिंग ऑफ SV, कन्वेक्सिटी ऑफ आर्च ऑफ आयोटा आपको मिलेगी. आपको क्या मिलेगा एट एंगल ऑफ लूवी? Convexity of the arch of aorta. Patient presents with severe vomiting. What will happen? Severe vomiting के साथ patient present किया तो there will be hypokalemia. In newborn baby during examination, doctor notice outgrowth with tuft of
अच्छा, टफ्ट ऑफ, ये अभी इन्होंने बिल्कुल रफ लिखा है, लेकिन दिस इज़ अ सिनेरियो ऑफ स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ। EBG रिजल्ट पे PO2 70 है, pH 7.35 है, HCO3 is 16, PCO2 is 60। तो ये आपके साथ क्या हुआ, दिस इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट विद एस्थमा हैविंग फॉलोइंग EBGs, pH 7.23, HCO3 26, हाइपरकैपनिया है। तो दिस इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन अ प्रेग्नेंट लेडी टू डायग्नोज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अर्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड। अर्ली ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, इट वाज डायग्नोज एज मल्टी नोडुलर गोइटर। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इट। मल्टी नोडुलर गोइटर के लिए हम क्या देंगे, ठीक है, उसको जो है स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक है, मल्टी नोडुलर गोइटर है, तो इसमें हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन देना है। अच्छा, फिर है डोपामीन, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड वेनोडाइलेटर। अच्छा, ventricular filling represented by TP segment. Patient presents with chest pain from 6 hours. ECG findings show no P wave होगा, that is hypokalemia। अच्छा, AV dissociation occur in, तो AV dissociation third degree complete heart block में होगी। After MI, which biochemical changes will be seen in hypoxia, तो you will see anaerobic glycolysis plus glycogenesis। Mitochondria has mitochondrial DNA। what अच्छा, what transport is affected by membrane thickness, that is simple diffusion। which organ demand increased supply than being supplied to it, so that is your breast। patient presents with chest pain, ECG shows elevation in lead 2 3 and AVF inferior wall। MI है thrombolytic therapy दो। patient with localized circumferential left ventricular lateral wall infarct में LCX involve होता है। A patient presents with acute chest pain, a clot is seen on the posterior interventricular artery, which of the following will be affected, तो इसमें interventricular septum affect होगा। फिर इसके बाद है ovarian artery is a branch of, तो that will be your, अच्छा ये अभी पता नहीं लग रहा कि इन्होंने क्या लिखा है, this is also completely blurred, cannot understand it। aortic and carotid body, मेरे ख्याल से उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम स्किप कर देंगे, ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस का सिनेरियो है। मिडिल एज है, विजुअल प्रॉब्लम्स होंगे, टेम्पोरल रीजन इन्वॉल्व होगा। वुमेन विद आफ्टर हिस्टेरेक्टमी फॉर benign ovarian cyst came with fever, pneumonia and BP 80/60। There were dilated fallopian tubes and fluid in the perineum. Gram negative rods were identified. She goes into shock. What is the mechanism of her shock? This is septic shock। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ GIT, तो सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा बाय द जूजुनम, ठीक है। अच्छा, तो ये आप याद करो, आयरन कैल्शियम जूजुनम में एब्जॉर्ब होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जूजुनम में। पैसिव अल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट जो है वो जूजुनम में, और अल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट आपको कोलॉन में नज़र आएगा। एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी SMA से अराइज होती है। पेशेंट नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट OPD विद कंप्लेंट ऑफ बायलैटरल नी पेन, तो बायलैटरल नी जॉइंट पेन ये हमने पढ़ा, इसमें हम क्या देंगे, हम वी विल गिव सिलिकॉप्स। जिब इज़ ग्रेटर देन मेलॉक्सिकैम। 12-year-old boy presents with diarrhea not responding to routine एंटी डायरियल ट्रीटमेंट। जूजनल बायोप्सी पे आपको पास पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस नज़र आए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कीवर्ड है फॉर सीलिएक डिजीज, फॉर विपल्स डिजीज़। पास पॉजिटिव आपको मिलेंगे इन विपल्स डिजीज़, ठीक है, विपल्स डिजीज़ में याद रखना है।
Patient was having multiple ulcer in third part of duodenum and diagnosis of celiac disease was made. अच्छा, तो इसमें हमने फिर क्या देना है पेशेंट को? वी हैव टू गिव IV corticosteroids. An athlete during running developed severe pain in the leg, ankle was swollen and developed ecchymosis on the second day. He can stand on the toes but it's painful. अगर टोस पे स्टैंड कर रहा है तो ये फिर प्लांटेरस का टेंडन का रप्चर है. इफ़ ही कैंट स्टैंड तो फिर एक्लीस टेंडन आपने लिखना है. Child with generalized edema, proteinuria 6 gram per day. Which of the following part of the kidney is involved? तो generalized edema और 6 ग्राम proteinuria per day है. कौन से part of the kidney इसमें involve होगा? That will be your glomerular basement membrane, option number B. Perhaps patient presents with decreased hemoglobin, MCV 103, tingling sensation in the legs and feet. तो इसका कॉज क्या है? ये B12 की तरफ जा रहा है जहाँ पे पेराइटल सेल डिक्रीज होंगे. An old age patient does not eat vegetables and fruits. What type of anemia will commonly occur? तो vegetables और fruits नहीं ले रहा, folic acid की deficiency इसमें होगी. That is your option number D, megaloblastic anemia. Patient was present in OPD with signs and symptoms of anemia on peripheral smears. आपको white cells और Heinz bodies नज़र आ रहे हैं. ये typical keywords है G6PD के लिए. Female presents with redness in lower lip and chin. Few days later develop vesicle hair. Diagnose is, तो redness lower lip और chin पे है और few days बाद vesicles develop कर लिए. This is a herpes zoster. Female patient came to gynae OPD. How will you know that ovulation has occurred? तो ovulation के बारे में आपको कैसे पता लगेगा कि ovulation हुई है? आपने देखना है प्रोजेस्ट्रॉन को, वो इंक्रीज हुआ होगा, which will suggest that ovulation has occurred. Patient presents with chest pain that increase with respiration. After few days it becomes better and only occur while climbing stair. What is the likely cause? तो इसका likely cause क्या है? That is your pleurisy. A patient presents with chest trauma, presents with hyperresonance on right upper lobe of the chest. The most likely diagnose क्या होगा? Hyperresonance आपको मिलती है in pneumothorax. Patient presents with anorexia, weight loss, BP 90/60, abdominal pain, sodium 130, potassium 5.4, साथ में pigmentation भी है. तो this is typical for Addison's disease. 45-year-old woman having weight loss and increased T3, T4, decreased TSH. तो ये आपके साथ hyperthyroidism, primary hyperthyroidism, बहुत simple MCQ है. Increased T4 occur due to oxidation of iodine. तो T4 क्यों increase होगा? Because of increased TPO, because of increased TPO, thyroperoxidase enzyme जो है. Patient presents with recurrent renal stones for the past 3 years. His calcium level is 11.2 and PTH is raised. What is the most likely of recurrent stones? तो recurrent stones होते हैं primary hyperparathyroidism में. A patient presents with facial edema and onward generalized edema. Cause क्या होगा? तो generalized edema में you will see in decrease oncotic pressure and salt retention. Female patient HRT पे है तो उसको कौन सा कैंसर डेवलप करने का रिस्क है? ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है. देयर इज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. लो एस्ट्रोजन OCP आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाएगी. हाई एस्ट्रोजन OCP जो है इट कॉजेज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. एस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP जो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क इंक्रीज करेंगे. HRT भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क इंक्रीज करेंगे. HRT containing both estrogen and progesterone, so it will increase the risk of breast cancer. About vitamin D, true is 25 hydroxylation in the liver, 1 alpha hydroxylation in the kidney. ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल ये ठीक लग रहा है, बाकी और देखने की ज़रूरत भी नहीं है. Patient presents with weakness of right limb and diplopia on seeing left. Lesion is present in, तो lesion कहाँ पे होगा? अगर वीकनेस है राइट लिम्ब में और डिप्लोपिया है ऑन सीइंग लेफ्ट, देयर विल बी अ लीजन इन द मिड ब्रेन. पेशेंट प्रेजेंट्स विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस अलोंग विद होमोनमस हेमनोपिया. लीजन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपके साथ लीजन होगा इन इंटरनल कैप्सूल. अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया है,
उसमें इंटरनल कैप्सूल में इंजरी होगी। अ फीमेल पेशेंट विद राइट साइडेड हेडेक एसोसिएटेड विद फोटोफोबिया फोनोफोबिया, तो ये एक साइड राइट साइडेड पे है, दिस इज़ क्लस्टर हेडेक, सॉरी दिस इज़ माइग्रेन। अच्छा, राइट साइडेड हेडेक है, उसके साथ सॉरी फोटोफोबिया फोनोफोबिया की बात आ जाए, फिर आपने माइग्रेन चूज़ करना है, फीमेल भी है। एफेजिया ऑकर ड्यू टू लीजन इन, तो एफेजिया आपके साथ होता है इन लीजन इन टेम्पोरल लोब। आफ्टर आरटीए ट्रैफिक accident, patient is taking non-stop but unable to comprehend what is he saying and writing, this is called, तो इसको हम क्या कहेंगे, this is called option number B Wernicke's aphasia। फिर है young male patient with headache for 1 day which has been increasing in severity to such an extent that now it is unbearable and he is saying it is worst headache of my life, तो ये typical keyword है सब एरेक्नॉइड हेमोरेज के लिए, and is associated with vomiting, he is irritable, has photophobia and neck stiffness। तो आपने इसमें कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होगा, यू हैव टू डू द CT स्कैन ब्रेन। लॉस ऑफ 2 point डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच वाइब्रेशन इन द लोअर लिम्स, ग्रासी लेग्स याद रखने हैं, तो ग्रेसी लेग्स आपको लोअर लिम्ब में ग्रेसिलिस मिलेगा। Patient came in ER after RTA, upper motor neuron lesion suspected, what will be seen, तो इसमें US मैंने याद किया है, U for upper motor neuron, S for spastic paralysis। Loss of accommodation reflex with third nerve involvement lesion कहाँ होगा, accommodation reflex lost हुई है और third nerve भी है साथ में, तो फिर आपने मिड ब्रेन लिखना है। सिर्फ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की बात आ जाती या लॉस ऑफ एकोमोडेशन की बात आ जाती तो उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखना है। अगर थर्ड नर्व साथ में हो फिर आपने मिड ब्रेन चूज़ करना है। स्ट्रक्चर इमीडिएटली अबव सब एरेक्नॉइड स्पेस ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, तो अब अबव सब एरेक्नॉइड स्पेस आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द एरेक्नॉइड। मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, तो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के मीडियल साइड पे आपको पीसीफॉर्म बोन होता है, अल्नर नर्व इसकी सप्लाई होगी। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपरली एंड थिनार वेस्टिंग नर्व इंजर्ड, मोस्ट लाइकली क्या होगा, ग्रिपिंग में उसका मसला है और थिनार वेस्टिंग है, तो इसमें मीडियन नर्व विल बी इन्वॉल्व। इन हिप सर्जरी इफ एनास्टोमोसिस इज ब्लॉक्ड, बैक साइड ऑफ द हिप इज सप्लाइड बाय, तो बैक साइड ऑफ द हिप इज सप्लाइड बाय योर inferior gluteal artery। A patient has pain in back of leg from back of hip to knees, back of leg from back of hip to knees, तो ये कौन सा नर्व इसमें इन्वॉल्व होगा, दैट इज शियाटिक नर्व। इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच सेल्स प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट्स, तो कौन से सेल सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लारा सेल्स होंगे या आपके साथ न्यूमोसाइट्स होंगे, न्यूमोसाइट्स, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आपको क्लारा सेल्स मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यूमोसाइट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ पेशेंट हैज़ लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी क्या होगा, अमंग्स द फॉलोइंग रिपीटेड है, राइट 9th and 10th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। आफ्टर RTA पेशेंट वॉज ऑन मोटरसाइकिल, फेल डाउन, डैमेज टू सिम्पेसिस प्यूबिस, स्ट्रक्चर डैमेज विद दिस, तो इसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा, लिवेटर एनाइड विल बी डैमेज्ड। पेरिएनल एब्सेस इन फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड लेटरली टू, तो ये लेटरली स्प्रेड होता है टू द इशोरेक्टल फोसा, पेरिएनल एब्सेस होगा इन फीमेल लेटरली, ये इशोरेक्टल फोसा में जा सकता है। अ वुमेन हैज़ टूथ एक्सट्रैक्शन एंड शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम मल्टीवाइटामिन्स एंटीबायोटिक्स, शी इज़ टेकिंग ए कैंडी सार्टान, तो कैंडी सार्टान कौन से ड्रग की एफिकेसी, कौन से एंटीबायोटिक की एफिकेसी को इफ़ेक्ट करता है, तो अमंग द फॉलोइंग ये भी रिपीटेड है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ बिहाइंड द ओवेरियन फोसा, तो यूरेटर आपके साथ बिहाइंड द ओवेरियन फोसा होगा। अ मैन प्रेजेंट्स विद जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग फॉर 2 weeks, और फिजिकल एग्जामिनेशन पे देर इज थिक वैक्सी स्किन, हेपेटोमेगाली एंड एनलार्ज किडनी, 24-hour urinary protein was 4 grams per day, लैब शो एनीमिया एंड एलिवेटेड कैल्शियम विद एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, तो इसमें डायग्नोज क्या होगा, दैट इज़ योर मल्टीपल माइलोमा। FRC इज़ डिक्रीज्ड इन, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है कि FRC आपके साथ डिक्रीज़ होता है
इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। TLC और रेजिजुअल वॉल्यूम भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कम होगा, ये भी याद रखें साथ में। और FEV1 by FVC will be increased। फिर है 35-year-old female presents with 6-month history of finger turning pale in cold, also having mild dyspnea with no wheeze, syndactyly with mild enlarged spleen, creatinine was high, urea also raised, ANA positive, HB10, WBC platelets normal, which antibody will be raised? तो इसमें से anti-centromere antibody will be raised। A child presents with recurrent respiratory tract infection with diarrhea, what is the likely cause? तो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, साथ में डायरिया है, कौन से इम्यूनोग्लोबिन की डिफिशियंसी है? दैट इज़ IgA। फीमेल टेकिंग ड्रग फॉर रिस्पायरेटरी इलनेस, विच अमंग द फॉलोइंग कॉज जॉन्डस? तो ऐसा कौन सा है जो आपके साथ जॉन्डस कॉज करेगा? एरिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन या सिप्रो या टेट्रा? सो द करेक्ट आंसर इज एमोक्सिसिलिन। A patient was started on amikacin. Nurse asked him to inform her if he developed following symptoms। तो कौन सा symptom? that is the hearing loss। ये एक ख़तरनाक symptom है। Middle age woman presents with joint stiffness in the morning। On examination doctor noticed nodes on the finger as stiffness improve after 3 to 4 hours। What investigation is needed to diagnose? तो इसमें भी आपने anti CCP antibodies करनी है, ठीक है। A patient chest pain है with MI suddenly on autopsy, what will be the finding? तो MI में आपको हमेशा कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में 1/4 आपके साथ इफेक्ट होगा। और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, तो करेक्ट जो है ज़्यादा दैट इज़ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। ये आप ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में याद रखो कि इट हैज़ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। अच्छा, a patient presents with abdominal pain, a thin plain white worm is found, what is the suitable treatment? Abdominal pain है और एक white worm आपको मिल रहा है, तो you have to give praziquantel till is greater than niclosamide। A male patient presented with abdominal pain and fever, ultrasound shows mass in the liver, which organism is responsible? तो liver में एक mass भी नज़र आ रहा है, एब्डोमिनल पेन और फीवर भी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म विल बी रिस्पॉन्सिबल? दैट इज़ योर ई कोलाई। पायोजेनिक लिवर एब्सिस की बात हो रही है। 1 कार्बन कैरियर जो है ये आपके साथ एक ट्रांसफ़र होता है, एक कैरियर। बायोटिन इज़ द कैरियर, ट्रांसफ़र के लिए फोलेट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद फिशरमैन प्रेजेंट्स विद गम स्वेलिंग एंड परपुरा। तो फिशरमैन के साथ फिशरमैन की हिस्ट्री आ जाए, गम स्वेलिंग और परपुरा में विटामिन सी की डिफिशियंसी आपको मिलेगी। अच्छा, पेशेंट विद फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स विद गम इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग, तो लाइकली डायग्नोसिस में क्या होगा? दैट विल बी योर स्कर्वी। प्रेग्नेंट लेडी यूजेस लॉट ऑफ एंटीबायोटिक फॉर सम इलनेस, शी गेव बर्थ टू अ बेबी हु वाज हैविंग जॉन्डिस एंड इजी ब्रूजेबिलिटी। तो इसमें किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी? विटामिन की डिफिशियंसी। फिर है रिसेप्टर प्रोटीन्स आर। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स आपके साथ क्या है? दे आर 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स। टाइप ए पर्सनैलिटी वर्नेबल टू कैट बिकॉज ऑफ, टाइप ए पर्सनैलिटी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इंक्रीज्ड कम्पिटिटिव ड्राइव आपको मिलेगा। पेशेंट इन ICU विद CVP पास डेवलप रैश अराउंड द इट, कल्चर शोज कैटलेस पॉजिटिव, कोगुलेस नेगेटिव, व्हाट इज द वे बाय विच this organism cause intravascular symptoms? तो this is your endotoxin, exopolysaccharide toxin। TSTT1 belongs to Staph aureus which is coagulase positive, and exopolysaccharide produced by Staph epidermidis which is coagulase negative and catalase positive। तो ये आपके साथ है exopolysaccharide। A patient taking some drugs now, same dose of drug is not effective, what is the possible mechanism? That is tolerance। In phenobarbital overdose, drug is excreted through body via, तो drug excrete होता है through the body via acidic alkalinization of urine। Which of the following will be ECG finding? इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो उसमें डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन मिलेगा आपको।
Sural nerve is present on the lateral side of the foot, ए करेक्ट लग रहा है. Maxillary artery supply which of the following, तो maxillary first arch को सप्लाई करती है. ठीक है. फिर पेटन लूमन ऑफ एलेंटॉइस आपके साथ क्या बनाएगा, तो ये मैंने याद रखा है पेटन लूमन ऑफ फिस्चुला, तो यूरेकल फिस्चुला. इस तरह बस कोई सेंस बनाना होगा. रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस यूरेकल सिस्ट है. पेटेंट लूमन ऑफ फिस्चुला याद रखना है. पेटेंट लोकल एरिया ऑफ यूरेकल सिस्ट ऑफ एलेंटॉइस में यूरेकल सिस्ट है. पेटेंट लूमन ऑफ एलेंटॉइस इन इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट में यूरेकल साइनस है. Patient fell on outstretched hand and there is fracture of distal end of radius. It is moved anteriorly and lateral. This fracture is called, तो इस फ्रैक्चर को हम गिलेजीज फ्रैक्चर कहते हैं. गिलेजी फ्रैक्चर एक बेनेट होता है बेस ऑफ द थंब. फर्स्ट मेटाकार्पल विल बी इन्वॉल्व. एक बॉक्सर होता है जिसे हम फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर कहते हैं. एक स्मिथ फ्रैक्चर है. रेडियस एंड फ्रैक्चर. गिलेजी फ्रैक्चर मिडल टू डिस्टल एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियो-अल्नर जॉइंट. Montegia fracture में radial head dislocation and proximal ulnar fracture. Which is the first line drug for Alzheimer's disease? The first line drug for Alzheimer's disease is donepezil. In Lew-Frimani syndrome आपके साथ 1 allele of p53 effect होगा. ये repeated है. Inferior diaphragmatic pleura supplied by which of the following? तो inferior diaphragmatic pleura को phrenic intercostal nerve supply करेगा. कॉस्टल प्लूरा को इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करता है. मीडियस्टिनल को फ्रीनिक नर्व. डायफ्राम को डोम बाय फ्रीनिक नर्व और पेरिफेरल पार्ट बाय द लोअर सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व. फीमेल प्रेजेंट्स पेशेंट केम इन कार्डियक ओपीडी विद कार्डियक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर एंड क्लेफ्ट पैलेट. तो ये क्या है? दिस इज टिपिकल सिनेरियो ऑफ फ्रेजाइल एक्स या डायजॉर्ज. अच्छा, डायजॉर्ज सिंड्रोम है. सही है, डायजॉर्ज सिंड्रोम है. कार्डियक डिफेक्ट है. साइकेट्रिक बिहेवियर है. ये क्लिपल फील होना चाहिए. क्लिपल फील सिंड्रोम नहीं है तो उसके जगह पर आप डायजॉर्ज सिंड्रोम लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस शुड बी क्लिपल फील. अगर ऑप्शन में हो उसको आपने पहले पिक करना है. वो भी इस सेम टाइप का सिनेरियो है लेकिन इसको खैर आप फिर कंफर्म कर लें. ठीक है. अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू हैविंग टॉल हाइट नाउ कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन एंड हैविंग लेंस डिसलोकेशन. तो लेंस डिसलोकेशन है, चेस्ट पेन है. दिस इज मार्फान सिंड्रोम. ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन अ ट्रांसवर्स इंसिजन इज गिवन. विच ऑफ द फॉलोइंग is most likely to be damaged? तो suprapubic catheterization में आपके साथ inferior epigastric artery damage होती है. A patient presents with trauma first got flaccidity which later progressed to upper motor neuron lesion in the lower limb and lower motor neuron in the upper limb. No sensory abnormality, no parasympathetic involvement. Bladder function, perineal sensation intact है. तो इसका most suitable diagnose आपके साथ क्या है? This is spinal shock. A man presents with complaint of flank pain and hematuria. X-ray पे no kidney stones. Urine analysis show acidic urine and crystals. Which kidney stone is this? तो ये आपके साथ कौन सा kidney stone है? That is your uric acid stone. फिर है maximum bioavailability of a drug is by which route? तो IV route से maximum होगी. Plasma protein के बारे में क्या ठीक है? ये बहुत ज़्यादा repeated है. Inactive until activated by the liver. सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग थ्रू GIT कब इंक्रीज होगी? जब ये आपके साथ लिपिड सॉल्युबल होगा. एग्जांपल ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या है? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन अमंग द फॉलोइंग: प्रोटीन सल्फेट, ब्रेडिकार्डिया बाय एटिनोलोल. तो ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में ब्रेडिकार्डिया बाय एटिनोलोल आपने करेक्ट ऑप्शन लिखना है. एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट प्रेजेंट्स विद वाइट पैचेस इन ओरल कैविटी एंड चिलोसिस. ठीक है, वाइट पैचेस है तो ये इसमें आपने क्या देना है? निस्टेटिन एंटीफंगल. हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर आपके साथ AFP होना चाहिए. AFP होगा. इन डिस्टॉर्टेड रिस्ट जॉइंट मिडल कार्पल बोन
इस प्रॉक्स इन द प्रॉक्सिमल रो जो है शी लुक्स लूनेट होगा, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ये निमोनिक है। अ यंग मैन प्रेजेंट्स with complaint of lower grade fever, generalized weakness, back and swelling in front of the thigh. On examination he has swelling above and below the inguinal ligament which disappears on lying down. तो इसका proper diagnose क्या है? That is your psoas abscess. Most potent anabolic hormone क्या है? That is your testosterone. अच्छा, पोटेंसी में DHT लिखना है। What is the initial test commonly used for to differentiate between simple obesity and Cushing syndrome? तो उसके लिए हम कौन सा सबसे अच्छा टेस्ट करेंगे? That will be your 24-hour urinary cortisol, 24-hour high dose dexamethasone, लो डोज डेक्सा। तो सबसे अच्छा टेस्ट है इज़ योर लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। शॉर्ट हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि ये स्टेडी स्टेट को जल्दी नहीं पहुंचेगा, इट विल हैव अ रैपिड क्लियरेंस, ठीक है, ये याद रखना है। मैं असल में इसमें ख़ुद भी गेसेस लगाता हूँ, तो समटाइम्स माई गेस इज़ रॉन्ग, दैट्स वाई आई चेंज द आंसर। तो शॉर्ट हाफ लाइफ में इसी तरीके से आपको याद भी होंगे, तो अगर मैं एक जगह गलत बता दूं और फिर करेक्ट कर दूं तो शायद उससे आपकी थोड़ी बहुत मेमोरी बिल्ड हो। शॉर्ट हाफ लाइफ का क्या मतलब है? रैपिड क्लियरेंस इनको स्मॉल ब्रीदिंग। व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर आपको मिलेगा? यू विल फाइंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अ गर्ल ऑन साबा फॉर एस्थमा मैनेजमेंट बट हर symptoms didn't improve, she needs step up in treatment. What is this? So that you will give inhaled corticosteroids. Diaphragm embryological development is from, तो ये आपके साथ होता है from septum transverse serum. inferior wall MI due to blockage of, तो inferior wall MI में कौन सी आर्टरी होती है? RCA। फर्स्ट आर्च का डिराइवेटिव सारे M से शुरू होते हैं, मैक्सिलरी आर्टरी आती है इसमें। फेशियल नर्व एंड पैरोटिड ग्रैंड रिलेशन क्या होगा? लाइज सुपीरियर टू पैरोटिड, पोस्टीरियर टू पैरोटिड, सुपरफिशियल था। लाइज मीडियल टू पैरोटिड, तो ये सुपरफिशियल होता है टू पैरोटिड। पेशेंट went to dental surgeon for excision of lower teeth. After procedure patient developed numbness of lower lip, तो इसमें कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है? इंफीरियर डेंटल नर्व। पायोजेनिक एसाइटीज़ किस वजह से होती है? दे आर कॉज्ड बाय ई कोलाई। एसिटिक टैप में ई कोलाई याद रखना है। पेरोटोनाइटिस, सिंपल पेरोटोनाइटिस में भी ई कोलाई होगा, लेकिन पायोजेनिक पेरोटोनाइटिस में जो है बैक्टीरियोइड्स होंगे। यहाँ पे पायोजेनिक एसाइटीज़ की बात है, तो दैट्स वाई इट्स ई कोलाई। पायोजेनिक एसाइटीज़ में भी ई कोलाई याद रखना है। पर प्यूरल सेप्सिस में ग्रुप बी इज़ ग्रेटर देन ई कोलाई इज़ ग्रेटर देन बैक्टीरियोइड्स। इन सिरोसिस लिवर कैप्सूल हिस्टोलॉजी पे आपको डेंस irregular connective tissue मिलेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ स्लाइड शो सीरस एसिनाई इन कनेक्टिव टिश्यू एंड डक्ट्स, तो ये आपके साथ कौन सा ग्लैंड है? दैट इज़ योर सिलिवरी ग्लैंड। अ पेशेंट हैज़ डाइल्यूट यूरिन एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू द ऑस्मोलैरिटी, सीरम ऑस्मोलैरिटी, तो इसमें हाइपो ऑस्मोलर रीनल मेडुला आपको मिलेगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आपको ट्यूबर्स में मिलते हैं। बायोलॉजिकल सब्सटेंस इन फूड क्या है? दैट आर योर न्यूट्रिएंट्स। अ यंग फीमेल प्रेजेंट्स विद गम ब्लीडिंग, पेटिक एंड एपिस्टैक्सिस, तो बेस्ट टेस्ट इसमें क्या करना होगा? यू विल परफॉर्म बोन मैरो बायोप्सी। सिंडेस स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहाँ पे लोकेट होता है? बिटवीन स्टाइलॉइड एंड मेस्टॉइड। सेवियर डायरिया में आपके साथ क्या होगा? इट विल कॉज हाइपोनेट्रीमिया, बहुत सोडियम लॉस हो जाएगा। पुअर लेडी वाइल carving flowers in her cloth got pricked with needle, developed signs of inflammation with distal interphalangeal joint. Pain if left untreated, what will happen? तो poor lady while carving flower in her cloth got a prick by the needle and inflammation of the distal interphalangeal joint, तो इसमें क्या होगा पेशेंट को? साथ में ऑप्शन नंबर बी भी होगा, दैट इज़ योर पेरोनिकिया, ठीक है, साथ में उसको पेरोनिकिया भी हो सकती है, तो ये याद रखें। 4-year-old child sustained knee injury of right leg involving the metaphysis after fracture from an RTA
The child has tender swelling, effusion in the knee and redness over the diaphyses. फिर है after knee aspiration a slab was placed, what is the likely effect of effusion and swelling in the knee? तो इसमें decrease epiphyseal blood supply होगी. Patient can't abduct and adduct, pad और dab की बात आ रही है. His fingers is due to damage of which of the following nerve? तो इसमें ulnar nerve, abduction और adduction, pad और dab. Palmar adduction, palmar abduction के लिए ulnar nerve is responsible. बोथ डैब और पैड जो है उनको अल्नर नर्व सप्लाई करता है, पाल्मर और डॉर्सल इंट्रोशियाई को. अ पेशेंट हैज़ मल्टीनोडुलर गॉइटर, T4 ज़्यादा है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? गिव रेडियो एक्टिव आयोडीन. एक्यूट डिक्रीज़ इन आर्टीरियल प्रेशर 100 से 60 मैप डिक्रीज़ हुआ, तो इसमें कौन सा कंपेंसेटरी चेंज आपको नज़र आएगा? डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ कैरोटिड साइनस. Lady after surgery presents in ward with swollen leg bilaterally, DVT suspected, तो इसमें कौन सी पैथोलॉजी होगी? एंडोथीलियल. इसमें हाइपरकोगुलोपैथी प्लस ब्लड स्टेसिस इज़ ग्रेटर देन एंडोथीलियल इंजरी प्लस ब्लड स्टेसिस. तो ये आप बस याद रखो कि हाइपरकोगुलोपैथी प्लस ब्लड स्टेसिस को आपने प्रेफरेंस देनी है. A chronic smoker presents with persistent cough and got cyanosed. On physical examination and pulmonary function testing, FEV1 and FVC ratio जो है डिक्रीज है. तो ये आपके साथ obstructive disease में होगा, that is your chronic bronchitis. इसमें साथ में he has persistent cough और cyanosed भी हुआ है, that's why it goes to chronic bronchitis. फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कोएंजाइम ए के लिए हमें पेंटोथेनिक एसिड की ज़रूरत होती है. विटामिन B5 जो है कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए है. B7 कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. ब्रेस्ट सिक्रीशन कौन से हैं? एपोक्राइन है आपके साथ, ठीक है. ब्रेस्ट इटसेल्फ इज़ अ मीरोक्राइन बट इसके सिक्रीशंस एपोक्राइन है, ठीक है. अबंडेंट एंटीबॉडी इन ब्रेस्ट मिल्क IgA होगा. हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेसेस ACTH. हाई डोज दिया उसने, ACTH को सप्रेस कर लिया, तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस इज़ पिट्यूटरी, दिस इज़ प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी. अच्छा, अभी ये आप याद रखो अबाउट हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट. अगर हाई डोज में एक तो हम 8 mg का डोज देंगे, लो डोज में हम 1 mg का डोज देते हैं, ठीक है. अगर आपने एक पेशेंट को हाई डोज डेक्सामेथासोन दिया और उसने कोर्टिसोल को कम कर दिया, ठीक है, तो आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि अगर आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन दिया और उसने कोर्टिसोल को सप्रेस नहीं किया, सो इसका मतलब ये है कि ही इज़ हैविंग ACTH ट्यूमर. इसकी ट्रीटमेंट में तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं. अगर कोर्टिसोल सप्रेस हुआ तो दैट इज़ योर पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है. अगर कोर्टिसोल आपके साथ सप्रेस नहीं हुआ, इट मीन्स दैट इट इज़ ACTH ट्यूमर. Mechanism of action of NSAID क्या है? Mechanism of action of NSAID is that it inhibits the arachidonic acid. Acute graft rejection में antibody mediated होगी. Professor took biopsy of lungs and some student asked about its growth and then professor said it's 1 centimeter and it needs to divide many times to make 10 power 9 cells. Then he asked how many times a cell has to divide to reach the number of 10 power 9, तो it should divide 30 times. ये repeated MCQ है. फिर इसके बाद है एंटीबॉडी फाउंड इन डायबिटीज़. डायबिटीज़ में आपको एंटी-गैड एंटीबॉडी मिलेगी. अर्ली एडोलेसेंट विद प्रोमिनेंट फोरहेड, एवर्टेड लुकिंग ईयर्स, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल एंड हाइपरगोनेडिज्म इस क्लिनिकली डायग्नोस्टिक ऑफ. तो ये क्लिनिकली डायग्नोस्टिक किसका है? टिपिकल फीचर्स आपको दिए हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के. नर्व इन्वॉल्व इन टार्सल टनल सिंड्रोम. तो टार्सल टनल में आपने याद रखना है, कार्पल टनल में मीडियन नर्व होता है, टार्सल टनल में आपको पोस्टीरियर टिबियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी. फिर है अ पेशेंट
got fracture of acetabulum and hip after RTA and lost sensation of hip. तो नर्व इन्वॉल्व इसमें कौन सा होगा? दैट विल बी योर शियाटिक नर्व. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ एसोसिएटेड विद विच कॉम्प्लिकेशन? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको फिस्चुला तो क्रॉन्स में होता है. टॉक्सिक मेगाकोलान आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ मिलेगा. प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 T4, इंक्रीज TSH. हाइपोथायरॉयडिज्म है. लिम्फोसाइट्स भी आपको मिल रहे हैं. तो ये आपको हेशिमोटोस की तरफ जा रहा है. दैट इज़ T cell mediated type 4. In 1918, H influenza pandemic was the worst pandemic and killed many people. Why was it so? तो ये क्यों इतना lethal था? Because वहाँ पे there was amongst the following antigenic shift due to animal protein हुआ था. QRS is preceded by. तो QRS से पहले आपके साथ क्या चीज़ आएगी? इससे पहले यू विल सी एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर यू विल सी QRS. तो QRS इज़ प्रिसीडेड बाय एट्रियल डीपोलराइजेशन. सेक्यूबेट्रिल जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये मैंने आपको SK21 के लेक्चर में फर्स्ट एड से पढ़ाया था. दिस इज़ अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. Exposure to aromatic hydrocarbon in cigarette smoke is most strongly associated with which cancers? तो ये आपके साथ कौन से कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है? विद ऑप्शन ए स्मॉल सेल का लंग कैंसर. सी डाइवर आफ्टर डाइविंग ascends rapidly then develop shortness of breath and joint pain. तो ये भी रिपीटेड है. नाइट्रोजन बबल इज़ द आंसर. So this was all about paper 4. Please do remember I'm making these efforts for you people, so I will need your support in the form of a subscription. Please इस चैनल को, इस वीडियो को बंद करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. I would be really grateful. So thanks for watching and inshallah see you in the next video.